Assalamu alaikum students. This is our lecture number 5, and in today's lecture we will talk about abstraction and modularization. As we have already discussed about abstraction, that abstraction is the ability to ignore the details and focus on the relevant features. And when we talk about the relevant feature, it means we are just focused on the things, the concepts which are related to the projects. In today's lecture, we will further discuss on abstraction, and we will also discuss on modularization, and then we will see with the programming example how these things are actually implemented, and we will also discuss the concepts that we have already discussed in the previous lectures, that how they are incorporated in our today's example. So the second thing that we have to discuss is modularization, and modularization is actually to break up your problem into the smaller units. We cannot solve the problem in large. So if we try to solve a problem as a whole, maybe it would be easier, but for the complex problem, it would not be easy, because if the nature of the problem is complex, then we will be in trouble if we try to develop a program as a whole. So we try to divide that program into the modules that itself are the independent units and can perform their functionality independently. In today's lecture, we will discuss the example of a digital clock, and we'll see how uh, a digital clock is to be designed, modeled, and how the different components will interact with each other. So सबसे पहले हमारे पास जो आइडिया हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम इस क्लॉक को एज ए होल सिंगल क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जब हम इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे तो विल सी के एज ए होल इसको इम्प्लीमेंट करना इट इज नॉट राइट डिसीजन. So thinking about the clock example, I will first explain how we think that a clock is actually working. Then based on that idea, we will design our code. So this is actually a clock. In a sense, we can see that there are something which is in the form of time. So इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं और इसके ऊपर हम गौर करते हैं कि ये कैसे चलेगा. तो इस क्लॉक के इस वक्त दो हिस्से हैं. जो इसका पहला हिस्सा है that represents R, और उसका जो दूसरा हिस्सा that represents a minute. लेकिन अगर हम गौर करें तो इस क्लॉक के अंदर इस सिंपल सी चीज पे गौर करें तो दिस इज ओनली अ सिंपल अ नंबर. लेकिन जब ये कुछ इस शक्ल में हमारे सामने नजर आता है तो वी कॉल इट अ क्लॉक. और हम इस क्लॉक में भी देखते हैं कि इस मिनट्स की वैल्यू के अंदर चेंज आता है और एक खास टाइम लैप्स करने के बाद आपके आर की वैल्यू चेंज होती है, विच इंडिकेट्स के आर्स को किसी ना किसी तरह से मिनट से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि नाउ आर नीड्स टू बी चेंज इट्स वैल्यू, इट नीड्स टू बी इंक्रीमेंटेड. और इसी तरीके से मिनट्स को भी कहीं ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि मिनट्स ने अपनी वैल्यू को चेंज करना. और अगर हम क्लॉक की वर्किंग पे गौर करें तो वी नो कि क्लॉक के अंदर सेकंड्स हैं जो कि हर क्लॉक टिक के साथ चेंज होते हैं, और सेकंड्स जब 60 सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी मिनट्स की वैल्यू चेंज होती है. इसका मतलब है कि 60 सेकंड्स की वैल्यू चेंज हो जाने के बाद
आपके मिनट्स को एक मैसेज जाता है कि अपनी वैल्यू को चेंज कर लो. If this second is also a number, so we can take these hour, minutes and seconds as different objects of number, and we see that these objects are interacting with each other to develop a complete clock system. So one more thing that we can understand from this example is that when different objects interact with each other, then a new object is built up. So object से मिलके नए objects बनते हैं, जिस तरह इस केस में minutes, hours और seconds से मिलकर एक नया object बना, that is the object of time or the object of clock, which is actually displaying the time. So इस example को अब हम फर्दर लेके चलेंगे अपने कोड में, लेकिन उससे पहले देखें कि नंबर की एक लिमिट है और इन रियलिटी नंबर की लिमिट ये है कि उसकी मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है. लेकिन इसी नंबर को जब हम क्लॉक में लेकर आएंगे तो फिर सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स के केस में इनकी एक लिमिट होगी. मसलन आपकी सेकंड्स की वैल्यू 60 से बड़ी नहीं हो सकती, मिनट्स की वैल्यू 60 से बड़ी नहीं हो सकती और 24 आवर क्लॉक में आवर की वैल्यू 23 से बड़ी नहीं हो सकती. लिहाजा दे डिफाइन द अपर लिमिट, और इसी तरीके से इनकी मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0. जीरो से छोटी वैल्यू कोई नहीं हो सकती. सो जब हम नंबर को डिफाइन करेंगे तो वी विल डिफाइन द लिमिट्स, और यही लिमिट्स हमें हेल्प आउट करेंगी कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द कोड. सो सबसे पहले जब हमने बात की है नंबर की, तो हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं दैट इज नंबर डिस्प्ले. सो पब्लिक क्लास नंबर डिस्प्ले, और इस नंबर डिस्प्ले की क्लास के अंदर we will define two private integer. One is defining the limit and other is defining the value. So इस केस में जो लिमिट है ये बिल्कुल वही लिमिट है जो कि डिफाइन कर रही है कि इस नंबर डिस्प्ले से बनने वाले ऑब्जेक्ट की अपर लिमिट क्या होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम इसी नंबर डिस्प्ले से सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी अपर लिमिट 60 होगी, और अगर इस नंबर डिस्प्ले से हम आवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी अपर लिमिट 23 होगी. सो लिमिट डिफाइन कर रहा है अपर लिमिट को. सिमिलरली वी नीड टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर नंबर डिस्प्ले, और एक कंस्ट्रक्टर एज यू ऑलरेडी नो उसका नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती. और कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना. सो हमने यहाँ पर लिमिट को बाहर से हमने लेना है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उस लिमिट को हमने फिर सेट करना है. दिस डॉट लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट, एंड दिस इसलिए लगाया क्योंकि मेरे कंस्ट्रक्टर की फील्ड का नाम और मेरी क्लास की फील्ड्स के नाम सेम है. सो दिस इज डिफरेंशिएटिंग के दिस डॉट लिमिट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू द करंट ऑब्जेक्ट और दूसरा लिमिट इस मेथड का है. सेकंड वैल्यू के साथ दिस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सिमेट्री मैंने इसके साथ दिस लगा दिया है. तो वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेंगे. वैल्यू एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस क्लॉक की करंट वैल्यू क्या होगी, यानी हर क्लॉक टिक पे इसकी वैल्यू चेंज होगी और जब वो लिमिट पहुंचेगी तो वहां पे जाके वो वैल्यू इसकी रीसेट हो जाएगी. अब हम देखते हैं कि अगर इस नंबर डिस्प्ले से हम मिनट्स और आवर्स के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो कैसे चलेगा, और इवन सेकंड्स के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो कैसे चलेगा. तो हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं इसके बिल्कुल पैरेलल, जो कि हमारी क्लॉक की क्लास होगी, और उस क्लॉक की क्लास में हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स, और फिर इन्हीं क्लासेस के अंदर हम मेथड्स ऐड करके उसके बाद हम एक ड्राइवर प्रोग्राम लिख के इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे. तो अब हम एक दूसरी क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लॉक डिस्प्ले.
सो यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक क्लास क्लॉक डिस्प्ले, और इस क्लॉक के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, इंटीजर सॉरी number display, and we need to declare these fields as private. Number display hours are private, number display minute, and private number display second. So now we have three different objects: seconds, minutes, and hours. Now we need to instantiate these objects. So अब हम इसका कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक क्लॉक डिस्प्ले, और चूंकि ऑब्जेक्ट की इंस्टेंशिएशन सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर होती है या मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ फील्ड्स को बाहर डिक्लेयर किया है, इनको कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डिक्लेयर नहीं किया। अगर हम इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करते तो फिर दे वुड बिकम लोकल टू द कंस्ट्रक्टर, और ये क्लास की फील्ड्स नहीं होनी थी और ये बाहर एक्सेस नहीं हो पानी थी। लिहाजा यहाँ पर हमने इनको क्लास लेवल पर डिक्लेयर किया। आवर इज इक्वल टू न्यू नंबर डिस्प्ले और द वैल्यू इज 60, और ये 60 जाके आपकी लिमिट को डिफाइन करेगी। इस तरीके से मिनट्स इज इक्वल टू न्यू नंबर डिस्प्ले, इसकी वैल्यू भी 60 रखी हमने, एंड देन सेकंड इज इक्वल टू न्यू नंबर डिस्प्ले, और इसकी वैल्यू आपने 6 रखी। लेट मी करेक्ट, आवर्स की वैल्यू 24, क्योंकि 24 आवर क्लॉक है, तो 24, 60 एंड 60 आर द लिमिट्स। तो मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी ये कंस्ट्रक्टर जो है ये मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देगा। अब हम इतने ही प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं, ताकि हम किसी भी तरह के अगर सिंटेक्स एरर पे हमें फेस करना पड़े तो हम उसे टाइमली करेक्ट कर लें। सो कंपाइल करने के लिए जावा सी क्लॉक डिस्प्ले डॉट जावा, इसको मैं कंपाइल करूंगा तो एक हमें एरर आया कि हमने सेमीकोलन प्लेस नहीं किया, तो उस एरर को अभी हम ठीक कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर सेमीकोलन प्लेस नहीं किया था, ये मैंने सेमीकोलन प्लेस कर दिया, और अब हम वापस अपने कोड में कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, और मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी, सेव। सो देयर इज नो एरर, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक कंपाइल हो गया है। वापस नंबर डिस्प्ले की क्लास में आते हैं, और आपको पता है कि नंबर से हमने सेकंड्स, मिनट्स और आवर के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, और नंबर, मिनट्स, सेकंड्स और आवर्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पर बुनियादी तौर पे इनके अंदर इंक्रीमेंट होगा। सो वी नीड टू डिफाइन अ मेथड पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट, और यहाँ पर हमने वैल्यू को चेंज करना है। वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1 मोड लिमिट। ओके, इस मेथड को देखें कि इस मेथड के अंदर हमने मोड का ऑपरेटर यूज किया है, और अगर हम चाहते तो हम इस कोड को कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे कि हम यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि इफ वैल्यू इज लेस देन लिमिट एंड वैल्यू प्लस प्लस, एल्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। यानी जब भी हमारी वैल्यू लिमिट के बराबर हो जाएगी, वैल्यू को 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मोड का काम भी है, जब किसी नंबर का मोड लिया जाए, तो अगर वो नंबर जिसका मोड लिया जा रहा है और जिससे मोड लिया जा रहा है दोनों बराबर हो, तो रिमाइंडर में हमें 0 मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर वैल्यू में +1 करने से वैल्यू लिमिट
के बराबर यानी 60 हो जाएगी या 24 हो जाएगी, तो 60 का 60 से मोड 0 होता है, लिहाजा वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो 0 सेट हो जाएगी। सो वी डोंट नीड टू मेक यूज ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट, हम इस मॉडल सेपरेटर्स के बिना काम चला सकते हैं। सो ये वाला जो मेथड है हमारा, ये बुनियादी तौर पे आपकी इंक्रीमेंट करेगा मिनट्स में, सेकंड में और इवन आवर्स के अंदर। अब हम एक और मेथड डिफाइन करते हैं जो कि वैल्यू गेट करेगा, पब्लिक इंट गेट वैल्यू, और वो आपको रिटर्न करेगा वैल्यू। और एक और मेथड लिखते हैं जो कि सेट करेगा, सेट वैल्यू, और वैल्यू जो हमने सेट करनी है वो लिमिट की वैल्यू है, उसको हम सेट कर सकते हैं। और लिमिट की वैल्यू के अंदर वी नीड टू डिफाइन a parameter, for example r limit r val, सॉरी वैल्यू को सेट करना हमने, तो उसकी नई वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में हम इसकी वैल्यू को डिफाइन करने जा रहे हैं। देखें ये वैल्यू जो है ये आपकी क्लॉक के करंट टाइम को डिस्प्ले कर रही है, लिहाजा इस वैल्यू का 0 और लिमिट के दरमियान होना जरूरी है। सो वी नीड टू प्लेस अ कंडीशन, इफ r val is greater than 0 and r val is less than limit, अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करती है, सिर्फ इसी सूरत में वैल्यू इज इक्वल्स टू आर वैल्यू, यानी रिप्लेसमेंट वैल्यू उस केस में आएगी। तो इस वैल्यू के थ्रू हम वैल्यू को अदर देन इनिशियलाइजेशन सेट करना चाह रहे हैं, जबकि जो कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू आ रही थी उस केस में हमने सिर्फ उसको इनिशियल वैल्यू असाइन की थी। सो यहाँ तक हमने नंबर डिस्प्ले की जो क्लास है उसको उसके अंदर हमने नंबर की वैल्यू और लिमिट को डिफाइन किया है। इसके अलावा हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है, और फिर चूंकि नंबर को इंक्रीमेंट करवाना है, यानी नंबर से बनने वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना है, तो एक इंक्रीमेंट का मेथड लिखा है। दूसरा हमने इसके अंदर उस वैल्यू को अगर गेट करना है और अगर हमने सेट करना है, तो ऑलमोस्ट नंबर के कॉन्टेक्स्ट में जो फंक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। अब चूंकि इस नंबर को हम यूज करना चाह रहे हैं क्लॉक के अंदर और ये नंबर एज ए टाइम डिस्प्ले होना है, तो हम एक और मेथड लिखते हैं जो कि फॉर्मेट करके थोड़ा सा इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि 24 आवर क्लॉक हम बनाने जा रहे हैं, तो 24 आवर क्लॉक के अंदर हमें 2 डिजिट्स नजर आते हैं, यानी जो आपका टाइम है 1 से लेके 9 तक, वो 01, 02, 03 इस तरह करके नजर आता है। लिहाजा अब हम एक और मेथड लिखने जा रहे हैं और उस मेथड के अंदर हम इस टाइम को फॉर्मेट करके इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं। सो चूंकि हमने वैल्यू को उसके साथ 0 पैड करवाना है, तो मैं इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखता हूँ, गेट डिस्प्ले वैल्यू। और अगेन इफ वैल्यू इज लेस देन 10, 10 इज अ डबल डिजिट, तो फिर तो हम कहते हैं कि जी रिटर्न करो एक 0 पैड करके विथ वैल्यू, एल्स रिटर्न करो। अब मैं यहाँ पर सिंपल वैल्यू भी रिटर्न करवा सकता था, क्योंकि 10 से लेकर 23 तक सारे 2 डिजिट्स नंबर हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने इस मेथड की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखी हुई है। लिहाजा अगर हमने रिटर्न करवाया यहाँ से सिर्फ वैल्यू को, तो वैल्यू की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है,
इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो इस केस में हमें सिस्टम जो है वो एक एरर रिपोर्ट करेगा। लिहाजा उस एरर से बचने के लिए हम इसके साथ एक एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर देते हैं। तो हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दिया। तो यहाँ पर जो प्लस का ऑपरेटर यूज हो रहा है, इट इज वर्किंग जस्ट लाइक कंकैटिनेशन ऑपरेटर। यहाँ पर हमारी नंबर डिस्प्ले की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इस क्लास को सेव करते हैं और फिर इस क्लास को हम कंपाइल करके देखते हैं कि क्या ये क्लास सक्सेसफुली कंपाइल होती है। और सो जावा सी नंबर डिस्प्ले डॉट जावा। सो वी हैव एरर्स, और वो एरर्स की वजह बिल्कुल हमारी टाइपिंग एरर है कि हमने रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर आर नहीं लिखा हुआ। तो एक बार दोबारा से इस प्रोग्राम में वापस जाके हम नंबर डिस्प्ले के अंदर इस एरर को ठीक कर लेते हैं। तो सो वी प्लेस रिटर्न हेयर, और अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि क्या ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाती है। So again we have some problem कि यहाँ पर वैल के साथ आर नहीं लिखा हुआ। सो अब आपको देखते जाएं कि बड़ी केयरफुली टाइपिंग करनी है ताकि आपके एरर्स ना आए, और अगर एरर आते हैं तो उनको हमने बड़ी केयरफुली पॉइंट आउट भी करना है कि वो एरर्स क्या है। सो अगेन यहाँ पर मुझे आर डालना था तो मैंने आर डाल दिया, इसको हमने सेव किया। क्योंकि वैल नाम का कोई वेरिएबल ना तो इस मेथड के अंदर एग्जिस्ट करता है और ना ही इस क्लास लेवल एग्जिस्ट करता है, लिहाजा हमें एरर रिपोर्ट हो गया। दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं एंड होपफुली दिस टाइम वी विल नॉट एनकाउंटर एनी एरर। परफेक्ट। ओके, हमारी नंबर डिस्प्ले क्लास सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब अपनी इस क्लॉक डिस्प्ले की क्लास के अंदर चेंजेस करते हैं। सो सबसे पहले तो जो नंबर डिस्प्ले की क्लास ने मुझे वैल्यू डिस्प्ले करवानी है वो स्ट्रिंग फॉर्म में, तो हम यहाँ पर भी अपनी क्लॉक के अंदर टाइम को डिस्प्ले करने के लिए एक स्ट्रिंग टाइप की फील्ड ले लेते हैं। प्राइवेट, केयरफुली टाइप कर लें, स्ट्रिंग डिस्प्ले। सो और अब हमें क्लॉक के अंदर बुनियादी तौर पे जो काम है वो है क्लॉक टिक का। यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हमें नजर आएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हम देखेंगे कि सेकंड्स का ऑब्जेक्ट मिनट्स के ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है और मिनट का ऑब्जेक्ट जो है वो आवर्स के ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हमें बहुत अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन समझ आ जाएगी। और एक और चीज भी हमें समझ आएगी कि हमने देखा कि हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम था उसके हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए और हर मॉड्यूल अपने हिस्से का काम करता है और फिर आगे मैसेज कन्वे कर देता है दूसरे मॉड्यूल को और ये दूसरे ऑब्जेक्ट को, और वो फिर उस तरीके से अपने फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्शन भी नजर आएगी कि वी आर जस्ट कंसर्न विद द क्लॉक टिक, यानी कि क्लॉक का टिक हमें प्रोवाइडेड है और उसके बैक एंड के ऊपर जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट के दरमियान हो रही है वो यूजर से हिडन है। तो एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इन दोनों चीजों की आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से होपफुली समझ आ जाएगी। सो पब्लिक वाइड क्लॉक टिक। तो गौर कीजिएगा कि सबसे पहले घड़ी के अंदर किस चीज में चेंज आनी है। सबसे पहले चेंज आनी है सेकंड के अंदर। तो सेकंड डॉट इंक्रीमेंट, हमने घड़ी के सेकंड्स को चेंज किया। तो जैसे ही घड़ी को हम चलाते हैं तो घड़ी में सबसे पहले सेकंड्स के अंदर चेंज आती है, लिहाजा सेकंड्स का इंक्रीमेंट यानी क्लॉक टिक के साथ घड़ी के सेकंड्स ने चलना शुरू कर दिया। अब जब इसमें इंक्रीमेंट होती है तो ये कब तक होगी। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ सेकंड डॉट गेट वैल्यू, और ये वैल्यू हमें रिटर्न कर रही है करंट वैल्यू, यानी इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो अगर वो 0 के बराबर हो जाए इसका मतलब है इंक्रीमेंट से पहले सेकंड्स के ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू
जो हमने नंबर डिस्प्ले की क्लास में वैल्यू की एक फील्ड रखी है, उसकी जो स्टेट है दैट इज 0, और जब क्लॉक टिक हुई तो वो 1 हो गई। इट मींस के अब जब मैं डॉट गेट वैल्यू करूंगा तो ये 1 होगी, और जब ये इंक्रीमेंट का मेथड 60 टाइम कॉल हो जाएगा तो आप अल्टीमेटली सेकंड्स की वैल्यू 60 होगी, और 60 mod 60 0 होने के बाद आपकी वैल्यू वापस 0 सेट हो जाएगी। और जब वो 0 सेट होगी तो अब ये जो इफ की स्टेटमेंट है, इफ सेकंड डॉट गेट वैल्यू, अब ये 0 सेट हो गई है, इसका मतलब है कि सेकंड्स अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर चुका है। नोटिस द टाइम कि आप मिनट्स को कहें कि अपनी वैल्यू को चेंज करें, तो यहाँ पर हम मिनट्स को कन्वे करेंगे कि मिनट डॉट इंक्रीमेंट, कि मिनट्स अपने आप को चेंज करें। तो अब मिनट्स की वैल्यू पहले 0 थी, जब 60 सेकंड्स क्लॉक आपकी चल गई है तो इस इफ स्टेटमेंट के ऊपर आपकी सेकंड्स की वैल्यू रीसेट होकर 0 हो गई, यानी वो अपना 60 सेकंड का साइकिल कंप्लीट कर चुका है, लिहाजा मिनट्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मिनट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब मिनट्स की वैल्यू जब आपका 3600 सेकंड्स होंगे, यानी 60 का साइकिल सेकंड्स का 60 टाइम्स कंप्लीट होगा, तब जाके आपके मिनट्स के 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे। तो अब हम कहते हैं कि इफ मिनट्स डॉट गेट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर मिनट्स अपना पूरा राउंड कर चुका है तो ऑब्वियसली मिनट्स की वैल्यू भी एक बार 0 से 60 पे जाके वापस 0 हो चुकी है। इसका मतलब है कि 160 मिनट्स कंप्लीट हो गए। नाउ दिस इज द टाइम टू सेंड अ मैसेज टू आर ऑब्जेक्ट कि अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लो। तो अब यहाँ पर आपका जो आर का ऑब्जेक्ट है वो अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। सो यहाँ पर सेकंड का ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है मिनट्स के साथ, यानी सेकंड देखता है जब उसकी वैल्यू वापस 0 हो जाए तो मिनट्स अपनी वैल्यू को 1 बढ़ा दे। मिनट्स का ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है आर के ऑब्जेक्ट के साथ, यानी मिनट कहता है कि जब मेरी वैल्यू पूरा साइकिल करके 0 हो जाए तो आर अपनी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दे। इस तरीके से आपकी ये क्लॉक चलती रहेगी, और आवर भी आपका इंक्रीमेंट करते 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 23 पे जाके एक दफा फिर रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। So this method is the best example to understand how objects interact with each other. अब हर क्लॉक टिक के साथ हमारी क्लॉक का डिस्प्ले चेंज होगा। सो वी नीड टू डिफाइन अ मेथड अपडेट डिस्प्ले, ताकि घड़ी पे जो टाइम नजर आ रहा है वो चेंज होता रहे। तो मैंने इस मेथड को भी कॉल करना है, और इस मेथड के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और एक चीज आपको नजर आ रही है कि मैंने इस मेथड के साथ कोई रेफरेंस नहीं लिखा, तो एक्चुअली इस मेथड को इसी क्लास के अंदर डिफाइन करना है और इसी क्लास के अंदर यूज करना है, लिहाजा क्लास को अपने ही मेथड को कॉल करने के लिए रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो अंडरस्टूड, वो मेथड उस ऑब्जेक्ट का अपना है, वो खुद कॉल, जब कुछ नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस मेथड को लोकेट करके कॉल कर लेगा। सो यहाँ पर हम मेथड को एज ए प्राइवेट मेथड डिफाइन करते हैं। मैंने एक फील्ड शुरू में ली है डिस्प्ले, और अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट लेक्चर में मैंने टाइम दिखाया था तो वो था 12 और 15 फॉर एग्जांपल, तो दैट वाज द टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट। और अब उस फॉर्मेट को हमने यहाँ पर लिखना है, तो r डॉट गेट वैल्यू, तो ये वाला हिस्सा मुझे आवर्स की वैल्यू देगा, और इसको मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ कॉलन के साथ, और फिर मिनट डॉट गेट वैल्यू, मिनट्स डॉट गेट वैल्यू, और इसको मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ फिर कॉलन के साथ। इफ यू वांट टू डिस्प्ले द सेकंड्स वैल्यू, तो सेकंड डॉट गेट वैल्यू। सो जो पहला r डॉट गेट वैल्यू है वो आपको आवर्स की वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल इट इज 12 कॉलन,
मिनट्स डॉट गेट वैल्यू आपको मिनट्स की वैल्यू देगा, फॉर एग्जांपल इट इज 15 कॉलन, सेकंड डॉट गेट वैल्यू आपको सेकंड्स की वैल्यू देगा, फॉर एग्जांपल इट इज 30, सो 12 आर 15 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। तो 12 कॉलन 15 कॉलन 30 एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डिस्प्ले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और जब हम इस डिस्प्ले को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे तो हमें करंट टाइम जो है वो नजर आएगा, बिकॉज हमने अपडेट डिस्प्ले का मेथड कॉल किया होगा। इस क्लॉक के मुताबिक जो टाइम होगा वो आपको नजर आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम कंपाइल होता है। पहले इसको सेव कर लें। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। तो वापस आए और इसको हमने प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल, देयर इज नो एरर। हम वापस अपने प्रोग्राम अपने क्लॉक डिस्प्ले की फाइल में जाते हैं और अब इसके अंदर देखते हैं कि हमें मजीद कौन से मेथड्स लिखने हैं। अब इस मेथड में चेंज करते हैं। देखें, जिस तरह हमने नंबर की वैल्यू को सेट किया था, बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक घड़ी आपके पास है तो आप उसका टाइम सेट कर सकते हैं। हम अब एक मेथड लिख रहे हैं, पब्लिक वॉइड सेट टाइम फॉर एग्जांपल, और इसकी वैल्यू है इंट r इंट m इंट s सेकेंड्स। तो हम अब कहते हैं r डॉट सेट वैल्यू, इसको हमने r पास कर दिया, मिनट डॉट सेट वैल्यू को हमने मिनट्स पास कर दिए, सेकेंड डॉट सेट वैल्यू को हमने सेकेंड पास कर दिए, और ये सारा काम करने के बाद हम अपने घड़ी के डिस्प्ले को भी अपडेट करेंगे ताकि हमें अपडेटेड टाइम जो है वो नजर आ जाए। और फिर हमें बेसिकली पब्लिक स्ट्रिंग गेट, मुझे डिस्प्ले वैल्यू भी चाहिए जो मैंने भी डिस्प्ले सेट किया था, तो वो मुझे करंट टाइम डिस्प्ले कर देगा, रिटर्न डिस्प्ले। So now our class is complete. Let's check whether our code is perfect or not. If there is any syntax error, we try to overcome how to remove those errors. So command prompt पे वापस आए और अपनी clock display को दोबारा से चलाया, and our code is perfect. So there is no syntax error at all. तो हमारी दोनों files complete हो चुकी हैं। मैं अभी आपके सामने एक ड्राइवर प्रोग्राम लिखने लगा हूँ, और फिर उस ड्राइवर प्रोग्राम के अंदर हम इस क्लॉक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और क्लॉक का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अपने अंदर नंबर्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और फिर हम क्लॉक को कहेंगे कि अपना टाइम मुझे दिखाए या अपने टाइम के अंदर चेंज करे। तो या हम क्लॉक को स्टार्ट करेंगे बाय इन्वोकिंग इट्स टिक मेथड, और फिर वो क्लॉक का टिक मेथड इंटरनली जो अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उनको किसी तरीके से मैसेजेस पास करेगा, और वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और हमें एक टाइम जो है वो नजर आ जाएगा। So let's write another class that is our driver program. So हमारी एक और क्लास है clock driver की। So public class clock driver, और obviously इसके अंदर हम एक मेन मेथड लिखेंगे, public static void main string so clock display my clock is equals to new clock display. तो क्लॉक डिस्प्ले की क्लास के अंदर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। क्लॉक डिस्प्ले की क्लास के अंदर हमने कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इनफैक्ट नहीं लिखा वो, और लेकिन जो कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं वो 60
60 और 24 फॉर द मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर रिस्पेक्टिवली सेट हो रही हैं। और अगर यहाँ पर मैं कहूँ अभी system.out.println और मैं कहूँ my clock dot get display, तो लेट्स सी कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स compile our driver java c clock driver.java. So there is no syntax error at all. और अगर मैं इसको रन करूं तो we find a null value as an output. So can you guess कि हमें null value क्यों मिली है? ओके, नल वैल्यू हमें इसलिए मिली है कि अभी तक हमने अपडेट डिस्प्ले का मेथड कॉल नहीं किया, लिहाजा, और ना ही हमने उस डिस्प्ले की फील्ड को कहीं क्लॉक के डिस्प्ले के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने उसको कहीं पे सेट किया। तो बाय डिफॉल्ट जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो नल से इनिशियलाइज होती हैं। तो जब तक मैं क्लॉक का टिक वाला मेथड इन्वोक नहीं करूंगा, ये डिस्प्ले की वैल्यू नल रहेगी। So let's go back and try to call the trick method, फिर देखते हैं कि हमें इसका रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। So यहाँ पर मैं वो स्टेटमेंट लिखे रहने देता हूँ और हम चेंज कर रहे हैं my clock dot clock tick। और अब अगर हम इसकी इस वैल्यू को आउटपुट करवाएंगे, सो हमें 12:01 जो है वो टाइम डिस्प्ले होगा। इसको हमने किया सेव और हम वापस जा रहे हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे हम आके इसको कंपाइल करते हैं। तो लेट्स कंपाइल अगेन। सो आपने देखा कि पहली वैल्यू नल है और दूसरे केस में हमारी वैल्यू जो है वो हमें 1 सेकंड डिस्प्ले हो रहा है और क्लॉक ने अपना एक टिक चला लिया है। और सेकंड्स के अंदर चूंकि वैल्यू 0 ही थी तो आवर ने उसको चेंज कर लिया। हमें अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। हमें आवर वाली इफ कंडीशन को नेस्ट करना चाहिए मिनट्स के अंदर, ताकि जब तक मिनट्स का साइकिल पूरा ना हो आवर जो है वो ना करें। तो अभी हमें जो ये थोड़ा सा लॉजिकल एरर आया वो इस वजह से कि हमने इफ आवर्स की स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है और जो मिनट्स थे इनफैक्ट वो मिनट्स तब तक 0 ही रहेंगे जब तक सेकंड्स अपना पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं कर देते। लेट्स गो बैक एंड मेक अ चेंज इन आवर क्लॉक डिस्प्ले फाइल। सो स्टूडेंट्स, आपको जो अभी हमने जो एरर देखा है उसकी रीजन मैं आपसे डिस्कस करता जाऊं, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के तौर पे लिखा, और अब ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रॉब्लम किस वजह से हमें आई है। देखें, ये जो पहली स्टेटमेंट है इसने इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद इस इफ ने चलना है। ये इफ उस सूरत में चलेगा जब आपके सेकंड्स का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमने इस इफ को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर वाला इफ तो चला ही नहीं, मिनट्स में इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो मिनट्स की वैल्यू 0 रहेगी, लिहाजा और में हमें इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लिहाजा इस चीज को हम वापस आके इस इफ को उठाते हैं और अपने प्रोग्राम के इफ के अंदर नेस्ट कर देते हैं। इसको हम यहां से उठाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, और मैं यहाँ से अपनी ड्राइंग क्लियर कर दूँ। सो नाउ अगर ये इफ की वैल्यू होगी तो मिनट्स में इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद अगर आवर की वैल्यू होगी तो आवर में इंक्रीमेंट है। सो वी नीड टू नेस्ट दिस आवर। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, और कंपाइल करके हम दोबारा सेव करते हैं और कंपाइल करके दोबारा से देखते हैं कि ये सक्सेसफुली चलता है। जो हमारे रिजल्ट थे वही हमें मिलने चाहिए।
सो अगेन हम अपने इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करते हैं। सो 001, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना है कि हमने कहा था कि ये 2 डिजिट्स में आएगा वैल्यू, लेकिन ये सिंगल में आ रही है। तो एक्चुअली हमने अपने कोड के अंदर उस नंबर के डिस्प्ले को कॉल करना है, जबकि हम वैल्यू को कॉल करते हैं। वैल्यू इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, तो डिस्प्ले वैल्यू को कॉल करेंगे तो ये 2 डिजिट्स में नजर आएगा। तो एक और माइनर सा चेंज इस प्रोग्राम में करेंगे और इस तरह आपको समझ आएगी इन छोटी छोटी गलतियों को देख के कि किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर अगर एरर्स आए और हमने उसको किस तरीके से ठीक करना है। सो गो बैक टू अवर क्लॉक डिस्प्ले क्लास और उसके अंदर हम जाके एक चेंज करेंगे माइनर सा और हमारा वो काम जो है वो ठीक हो जाएगा। सो वो चेंज ये है कि यहाँ पर हम बेसिकली गेट वैल्यू के बजाय हमें गेट डिस्प्ले वैल्यू कॉल करनी है, क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले करना है। तो बजाय इसके वैल्यू के वी कॉल द डिस्प्ले वैल्यू एंड डिस्प्ले वैल्यू। लेट्स सेव इट और एक बारी गेट डिस्प्ले वैल्यू। और अब दोबारा से इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ कमांड प्रॉम्प्ट शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर। सो वी आर गोइंग बैक कमांड प्रॉम्प्ट और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको कंपाइल किया एंड नाउ वी गेट द राइट आउटपुट 0000 एंड 01। सो अभी सिर्फ एक सेकंड के अंदर इंक्रीमेंट लगा। तो सिर्फ आपको क्लॉक एक दफा एक लूप लगा के सिमुलेट करके दिखा देता हूँ और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से है। तो एक क्लॉक को मैं सिमुलेट करने लगा हूँ सिर्फ, और रिमेंबर कि हम यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं बना रहे, हम सिर्फ इस क्लॉक की एग्जांपल को इस्तेमाल करके मॉड्यूलराइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन को समझ रहे हैं। और जो अभी आपको सिमुलेशन नजर आएगी वो एक लूप की शक्ल में होगी, तो वो टाइम की तरह तो नहीं होगी। वो सिमुलेट होते हुए नजर आएगा कि टाइम के अंदर चेंज आ रहा है। और अदरवाइज वी नीड सम अदर टेक्निक्स कि हम अपने स्क्रीन पे अपने इस प्रोग्राम के साथ टाइम को एक्जेक्टली टाइम की तरह दिखाएं, लेकिन ये सिमुलेशन आपको बहुत कुछ समझा देगी। सो अब प्रोग्राम के अंदर चेंज करते हैं और फिर उसको चला के सिमुलेट करके। सो मैं अपने ड्राइवर प्रोग्राम में जा रहा हूँ, क्लॉक ड्राइवर में, और हमने यहाँ पर एक छोटी सी चेंज की है। वी प्लेस्ड दिस लूप और उस स्टेटमेंट को लूप पे ले गया। लूप को मैंने लेस देन 61 रखा ताकि 60 का साइकिल कंप्लीट हो जाए। इसको मैंने सेव किया है और वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो इस आखिर पे गौर कीजिएगा कि जब आपके मिनट्स सेकंड्स 59 हुए यहाँ पर, तो दिस इज द मैसेज एक्चुअली कि इस मिनट्स को चेंज होना। तो यहाँ पर मिनट्स चेंज हो गए। अब फिर देखिए मिनट्स के बाद दोबारा सेकंड्स 1 से स्टार्ट हो गए। सो ये जस्ट वी ट्राई टू सिमुलेट द क्लॉक के किस तरीके से आपको आउटपुट नजर आ सकती है। अब एक आधा मेथड और कॉल करते हैं, फिर मैं अब इसको कोड के अंदर जाके आपको इसकी पूरी वर्किंग को एक दफा एक्सप्लेन करूंगा। तो एक सेट टाइम के मेथड को कॉल करते हैं और क्लॉक का टाइम सेट करके चेक करते हैं। सो गोइंग बैक टू द कोड, इस लूप को मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ फिलहाल। माई क्लॉक डॉट सेट टाइम, आवर्स मैंने सेट कर दिए 13, मिनट्स मैंने सेट कर दिए 45, सेकंड मैंने सेट कर दिए 36। तो और उसके बाद हम वापस इस क्लॉक के टाइम को चेक करते हैं। सेव करता हूँ और फिर वापस जाके इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली कंपाइल होता है। सो अगेन परफेक्ट। पहले नल था, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया और उसके बाद मैंने अपना क्लॉक का टाइम सेट किया। सो मेरी क्लॉक का टाइम सेट हो गया। अब हम वापस अपने कोड पे आके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि एक्चुअली बैक एंड पे काम
किस तरीके से हुआ था। ओके, ये मेरी नंबर डिस्प्ले की क्लास है और इस नंबर डिस्प्ले की क्लास के अंदर ये जो दोनों फील्ड्स हैं दे आर प्राइवेट, और यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है इस सेंस में कि ये फील्ड्स डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पर लिमिट की फील्ड डिफाइन कर रही है कि इस नंबर की अपर लिमिट क्या होगी, और वैल्यू डिफाइन कर रहा है कि इसकी करंट वैल्यू क्या है। तो इस नंबर डिस्प्ले से मैंने सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। फिर ये कंस्ट्रक्टर है जिसकी मदद से हमने लिमिट को सेट किया है। फॉर एग्जांपल मैं इस नंबर को वीक के लिए यूज कर सकता था तो ये लिमिट 7 होती, मंथ के लिए यूज करता फॉर एग्जांपल हर महीना 30 दिन का तो ये लिमिट 30 होती, और इस तरीके से सॉरी मंथ डेज के केस में, मंथ के डेज के केस में ये लिमिट 30 होती है, और मंथ के केस में ये लिमिट 12 होती है। इफ वी वांट टू गेट ईयर्स, यानी ईयर्स के अंदर मंथ जब 12 हो जाएंगे तो तब ईयर के अंदर चेंज आएगा। इंक्रीमेंट की फील्ड सिंपल इंक्रीमेंट करती है एक एक वैल्यू को, और फिर आपकी जो नीचे गेट वैल्यू है वो आपको करंट वैल्यू रिटर्न करेगी। सेट वैल्यू से हमने वैल्यू को सेट किया था, और डिस्प्ले से हमने वैल्यू को उसका डिस्प्ले सेट किया था, जो भी मैंने आपको आखिर में दिखाया है, जहाँ पे हमें वो डबल डिजिट्स के अंदर रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। और जो दूसरी क्लास है जो हमारी एक्चुअली क्लॉक डिस्प्ले की क्लास है, उस क्लास पे अगर हम गौर करें तो इस क्लास के अंदर यू विल सी कि हमने आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के ऑब्जेक्ट्स बनाए, और ये जो तीसरा स्ट्रिंग फील्ड है डिस्प्ले की, ये सिर्फ और सिर्फ क्लॉक के जो डिस्प्ले, जो टाइम डिस्प्ले उसको मैनेज कर रहा है। और यहाँ पर ये अपर लिमिट्स हैं आवर्स की 24, मिनट सेकंड की 60, और मेन मेथड जो एक्चुअली इसके पीछे काम कर रहा है, जिससे हमें समझ आती है कि ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं, वो है कि सेकंड्स डॉट इंक्रीमेंट जब चलेगा और इस सेकंड्स के अंदर जब चेंज आएगी तो ये वैल्यू 0 से चेंज होते होते 59 और फिर 60, और फिर 60 का 60 से mod 0 आएगा, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है मेरी, ये वाली कंडीशन उस वक्त तक ट्रू नहीं होगी जब तक कि मेरे सेकंड्स की वैल्यू एक बारी 0 होके मिनट्स में इंक्रीमेंट हो नहीं जाता, और मिनट्स अपना साइकिल पूरा नहीं कर लेते थे। जब मिनट्स अपना साइकिल पूरा करेंगे तो आवर्स में इंक्रीमेंट होगा। एक और नई चीज जो पिछले लेक्चर्स में हमने नहीं देखी, दैट इज कि ये जो मेथड है, इस मेथड को हमने विदाउट रेफरेंस कॉल किया है, एंड इट इज एक्चुअली कॉल्ड इंटरनल मेथड कॉल, यानी क्लास ने अपने ही मेथड को कॉल किया, और इस मेथड को हमने प्राइवेट रखा हुआ है। प्राइवेट रखने का मतलब यह है कि ये मेथड क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। सो हमने इस मेथड की एक्सेस क्लास से बाहर नहीं दी, तो जो क्लास लेवल पे इंटरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉक टिक का इंटरफेस दिया हुआ हमने, और हमने सेट टाइम का इंटरफेस दिया हुआ है, और अगर हम नंबर की क्लास को डायरेक्टली यूज करते तो वो होते, अदरवाइज जो नंबर डिस्प्ले के मेथड्स हैं वो इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो गए। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने बुनियादी तौर पे जो चीजें सीखी हैं वो ये हैं कि एक बड़े प्रॉब्लम को किस तरह से छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और उन डिवाइडेड प्रॉब्लम्स को एज ए इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम देखते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम अपना इंडिपेंडेंट सोल्यूशन देते हैं। उन सॉल्यूशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। सो दैट वाज अबाउट द मॉड्यूलराइजेशन। हमने अपने क्लॉक को, पूरे की पूरी क्लॉक को एक इस तरह से ब्रेक किया कि इसके अंदर सेकंड एक ऑब्जेक्ट है, मिनट एक ऑब्जेक्ट है, और आवर एक ऑब्जेक्ट है, और फिर इन ऑब्जेक्ट्स को हमने इंडिपेंडेंटली देखा है, यानी ये सारे के सारे जो है ये नंबर हैं। तो हमने बेसिकली नंबर की फंक्शनैलिटी डिफाइन की, और फिर उसी नंबर की फंक्शनैलिटी को, चूंकि सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स का बिहेवियर एक जैसा है कि इनके अंदर एक कंसिस्टेंट चेंज आता है, लिहाजा हमने वो बिहेवियर नंबर में डाला, और नंबर का भी ये बिहेवियर है कि नंबर के अंदर इंक्रीमेंट हो सकता है, नंबर की लिमिट सेट होती है। तो हमने वो नंबर की लिमिट्स उनको यूज करते हुए नंबर की क्लास से हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए,
यानी एक क्लास और उससे हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। फिर इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जब हमने आपस में इंटरेक्ट करवाया तो एक नया ऑब्जेक्ट टाइम यानी क्लॉक हमारे सामने आई, और इस तरह हमने देखा कि ऑब्जेक्ट से मिलके किस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सो आई होप कि आज के लेक्चर के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्शन की भी समझ आ गई होगी, मॉड्यूलराइजेशन की भी, और इससे पहले जो हमने एनकैप्सुलेशन को डिस्कस किया, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल थी, पर्टिकुलरली जहां पर अपडेट डिस्प्ले हो रहा है, आप तो सिर्फ इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट के साथ साथ आप देखते हैं कि बैकएंड पे बहुत कुछ हो रहा था। दैट वाज ऑल इम्प्लीमेंटेशन, और वो हिडन थी फ्रॉम द यूजर, दैट्स वी कॉल इट एनकैप्सुलेशन। सो अगले लेक्चर के अंदर हम नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा से मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।